Honorable members, uh, the existence of a second chamber for a parliament has always remained a very fiercely debated subject. To talk to you about the role of Rajya Sabha and its contribution to Indian polity, we have the distinguished presence of Shri Jairam Ramesh, an engineer and an economist by profession. He is educated at IIT Mumbai, Carnegie Mellon University, and MIT US. A fourth-time MP of the House representing the state of Karnataka, he has held significant portfolio in the cabinet in the past. He was also chairman of the department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology prior to his re-election to the House. On the dais, we also have our Secretary General and Shri Mukul Pandey, Mr. OSD, as the officer in attendance. I now request Shri Jairam Ramesh to kindly share his thoughts on the subject and interact with honorable members. Over to you, sir. Thank you. Can I speak from here? Of course. Make it informal. I'm delighted to see P.T. Usha, who made all our hearts go flutter in the 1980s. It was such a great pleasure to see P.T. Usha, and one of the high points was to see her not only at the Asian Games but also in the Olympics. So, ma'am, welcome to the Rajya Sabha. मैं शुरुआत काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा है, जो 1952 में स्थापित हुआ था, आज हम 70 साल मना रहे हैं, पर इसके पहले काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था. We are now discussing Council of States, which is the Rajya Sabha, which came into being because of the Constitution of India. And the first session, if I remember right, was on the 16th of May, 1952, 13th of May, 1952. But before the Council of States, there was a Council of State. This was under the Government of India Act of 1919. Those of you who are familiar with Indian history will remember the Montagu-Chelmsford reforms of 1919, which for the first time created a legislative assembly, which subsequently became the Lok Sabha, and the Council of State, which became the Council of States. But Council of State और Council of States में बहुत अंतर है. काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, क्योंकि तब के समय में राज्य नहीं थे. बिफोर 1947 there was no concept of states. States meant princely states. You had British India, and you had princely states. So this Council of State was entirely different. 60 members elected based on property and income tax requirements. But when the Constituent Assembly met, there was a subcommittee of the Constitution called the Union Constitution Committee. और इसमें 15 सदस्य थे. इस यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की, और इसमें बड़े बड़े महान लोग थे. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, के.एम. मुंशी जैसे बड़े बड़े लोग थे. और इन 15 सदस्यों की समिति ने जो आज हम लोकसभा पहचानते हैं और जो हम आज राज्यसभा पहचानते हैं, उस पर चर्चा की और उसको रूप दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसकी चर्चा हुई. तो द ओरिजिन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स goes back to this subcommittee of the Constituent Assembly, chaired by Pandit Nehru. Of course, Pandit Nehru didn't spend too much time on this committee because he was also Prime Minister at that time. So the bulk of the Constitution Committee work was done by Dr. Ambedkar, K.M. Munshi, many others, K.T. Shah, so on. I'll
talk about them a little later. So they envisaged a council of states, which became Article 80 in the Indian Constitution. If you look at the Indian Constitution, Article 80, और ये जब आपको कोई लोकसभा से छेड़ेगा कि आप राज्यसभा हैं, हम लोकसभा हैं, हम तो आपके ऊपर हैं, आप कहिएगा कि संविधान में आर्टिकल 80 राज्यसभा का है और 81 लोकसभा का है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का प्रावधान लोकसभा के प्रावधान के पहले आता है। इस पर भी चर्चा हुई, इस सब कमेटी में चर्चा हुई कि क्या हाउस ऑफ द पीपल पहले आना चाहिए या काउंसिल ऑफ स्टेट्स पहले आना चाहिए। पर एक आम सहमति बाबा साहब अम्बेडकर और मुंशी और कई लोगों ने बनाया कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि आप जानते हैं हमारे संविधान का पहला लाइन है इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये पहचान देने के लिए आर्टिकल 80 बना। On 3rd of January 1949, the Constituent Assembly met and they discussed what became Article 80 in the Indian Constitution on the Rajya Sabha। और मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि आज जो बातचीत होती है राज्यसभा के संदर्भ में, उसी दिन 3rd जनवरी 1949 पर भी यही चर्चा हुई थी। दो अलग अलग विचार थे। एक विचार था राज्यसभा बिल्कुल जरूर नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, यू डोंट नीड राज्यसभा, लोकसभा इज इनफ, हाउस ऑफ द पीपल इज इनफ, व्हाई डू यू नीड 2 हाउसेस। और इस विचार के प्रमुख जो वक्ता थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उड़ीसा के एक सदस्य थे, उनका नाम था लोकनाथ मिश्रा। पंडित जी, आपके रिकॉर्ड में कभी कभी लोकनाथ का स्पेलिंग LOKA आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में LOKE आता है। इसको आप थोड़ा देखिएगा क्योंकि कई लोकनाथ मिश्र हैं, कई लोकनाथ मिश्र हैं। एक हमारे पिनाकी मिश्रा के पिताजी भी लोकनाथ मिश्र हैं, तो कभी कभी ये लोग मान लेंगे कि वो लोकनाथ मिश्रा थे, नहीं, ये LOKENATH लोकनाथ मिश्रा थे। और इनका ये कहना था कि राज्यसभा की जरूरी नहीं है, कि हमारे संविधान में सिर्फ एक सांसद होना चाहिए, यानी कि सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा होना चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत नजरिया था M अनंत शयनम अयंगार का। M अनंत शयनम अयंगार लोकसभा के मेरे ख्याल में दूसरे स्पीकर थे और वो बिहार के राज्यपाल बने, बड़े एक बहुत महान व्यक्ति थे। अनंत शयनम अयंगार ने कहा नहीं, राज्यसभा जरूरी है, और उन्होंने 3 कारण दिए। और इस पर आप देखिएगा, आपको जब वक्त मिलेगा, अभी सब डिबेट ऑनलाइन है, 1 घंटा आप 2 घंटे में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने 3 कारण दिए वाई राज्यसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, वी मस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एंड only by having a Rajya Sabha will people who cannot be elected to Lok Sabha represent people in Rajya Sabha. So that was the first reason that Anant Shainam Ayengar gave, that Rajya Sabha is important because not everybody can get elected to Lok Sabha, और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकसभा के चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, और उनको वो समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा से ही भागीदारी मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा कारण अयंगार साहब ने यह दिया कि गर्मा गर्मी जो होती है, माहौल जो बनता है लोकसभा में, जो कानून बनेंगे वो पैशन के आधार पर बनेगा, बहस चलती रहेगी, और कभी कभी लोकसभा के जो सदस्य हैं वो ठंडे दिमाग से काम नहीं कर पाएंगे। जो जनता में आक्रोश है
वो लोकसभा में लाएंगे और उस आक्रोश के बीच में ये कानून बनेगा। तो अनंत शयन अय्यंगार ने कहा, टू रिड्यूस पैशन एंड हीट ड्यूरिंग लॉ मेकिंग वी नीड राज्यसभा। इसका एक ऐतिहासिक मैं आपको मिसाल देता हूं। जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हो रहा था 1787 में, जॉर्ज वॉशिंगटन ने थॉमस जेफरसन को कहा, थॉमस जेफरसन ने कहा अमेरिका के लिए सिर्फ एक ही हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा नहीं, सेनेट की भी जरूरत है। और जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा ए सॉसर इज यूज्ड टू कूल हॉट टी, सो अ सेनेट विल बी यूज्ड टू कूल हॉट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये मिसाल बार बार राम गोपाल यादव जी कोट करते रहते हैं हमारे राज्यसभा में कि चाय जब हम पीते हैं प्याला के साथ, गर्म चाय होता है, हम पी नहीं सकते हैं, पर हम प्याले में डाल के हम पीते हैं, तो वो प्याला राज्यसभा है और वो जो कप में गर्म चाय है वो लोकसभा है। तो अयंगार ने कहा कि टू कूल पैशन एंड हीट एंड हैव रिलैक्स्ड डिस्कशन। हालांकि आज अगर आप राज्यसभा को देखें वहां भी गर्म चाय ही है, वहां कोई प्याला नहीं दिखता है, पर तब के जमाने में ये माना जाता था कि राज्यसभा में ठंडे दिमाग से वरिष्ठ लोग बैठकर कानून बनाएंगे। तो ये दूसरा कारण था। एंड द थर्ड रीजन गिवन बाय अनंत शयन अय्यंगार वाज दैट लोकसभा इज ए इलेक्टेड बॉडी फॉर 5 years, बट राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा हमेशा परमानेंट होता है क्योंकि 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं हर 2 साल, तो ये परमानेंट बॉडी है। और जो सरकार है उसके लिए ये परमानेंट बॉडी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको मिसाल दूंगा, सरकारें जब बिल इंट्रोड्यूस करती हैं, ऐसे बिल होते हैं जो लोकसभा में पेश किया जाता है, जब लोकसभा लैप्स हो जाता है वो बिल लैप्स हो जाता है। पर जब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है और पारित हो जाता है, तब वो बिल, ये मानकर हम चलते हैं कि वो बिल अभी भी जीवित है। महिला आरक्षण बिल आज भी जीवित है क्योंकि महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ था। एंड राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। But if it had been introduced in the Lok Sabha and if it had passed in the Lok Sabha and not passed in the Rajya Sabha, it would have lapsed. तो अयंगार साहब ने ये 3 मिसाल दिए, इस पर बहुत चर्चा हुई, कई सदस्यों ने भाग ली। केटी शाह के बारे में मैं आपको एक रोमांचक चीज़ बताऊंगा। हमारी जब पहली राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था 1952 में, हम लोग ये मानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी का कोई इलेक्शन नहीं था, हालांकि पहला राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा गया था। राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे और केटी शाह, जो संविधान में उनका बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, केटी शाह उनके खिलाफ लड़े और उनको 15% वोट भी मिले। और केटी शाह की ये विशेषता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खूब भाषण किए कि हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए और सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। और आपको याद होगा कि ये 2 शब्द हमारे प्रीएम्बल में 1976 में ऐड किए गए, पर केटी शाह ने पहले यह सुझाव दिया था, हालांकि उनका संशोधन मंजूर नहीं किया गया अंबेडकर साहब से। तो दिस इज द डिबेट ऑन द राज्यसभा। On the one hand, you don't need Rajya Sabha, it's waste of time, waste of energy. On the other, the reason given by Mr. Ananth Shayna Iyengar, 3 reasons. It's a permanent body. Number 2, it's a cooling down heat body.
And number 3, it is a body that represents diversity of India. People who cannot get elected into Lok Sabha, political parties will be in Rajya Sabha. So this is the history of the Rajya Sabha. So I thought it will be useful for you to understand, क्योंकि आज भी यही सवाल उठाया जा रहा है, आज भी बहस हो रही है कि राज्यसभा की क्या जरूरत है. दूसरी बात जो मैं कहूंगा इस इतिहास के बाद, दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि लोग ये नहीं जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा एक समान है, बराबर है. हम लोग बार बार अपर हाउस लोअर हाउस कहते हैं, ये गलत है. ये शब्द का इस्तेमाल हमें करना नहीं चाहिए. संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि अपर हाउस है लोअर हाउस है. संविधान में सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, कहीं नहीं लिखा गया है हाउस ऑफ एल्डर्स. मुझे पता नहीं क्यों ये हाउस ऑफ एल्डर्स कहां से आया. कहीं नहीं लिखा है कि अपर हाउस लोअर हाउस. मुझे आज तक मैं पता नहीं कर पाया हूं कि कहां से ये शब्द हमारी भाषा में आ गई कि हम इसको अपर हाउस कहते हैं, उसको लोअर हाउस कहते हैं. ये दो हाउस बिल्कुल समान है, बिल्कुल बराबर हैं, एक ही अधिकार हैं, एक ही हक है. सिर्फ एकमात्र अंतर है, वो है हमारे संविधान में आर्टिकल 110. एक ही अंतर है. ओनली आर्टिकल 110 सेपरेट्स लोकसभा फ्रॉम राज्यसभा. और वो आर्टिकल 110 क्या कहता है कि अगर सरकार एक बिल पेश करती है और उस बिल को स्पीकर ने मनी बिल घोषित किया है, तो उस पर राज्यसभा चर्चा कर सकती है, पर उस पर राज्यसभा के जो संशोधन है वो सरकार अगर मान सकती है, पर उस सरकार नजरअंदाज भी कर सकती है. यानी कि राज्यसभा का कोई हक नहीं बनता है. चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, पर अगर संशोधन लाना है बिल में, राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होगा मनी बिल में. और मनी बिल की परिभाषा क्या है? जहां मनी का इस्तेमाल होता है, यानी कि खर्च होता है, सरकारी तिजोरी से खर्च होता है, बजट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च होता है, वो ज़्यादातर उसी को मनी बिल कहा जाता है. इस पर मैं बाद में कुछ और कहूँगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में, आपने आज देखा, कल पढ़ा होगा अखबारों में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकार को मंजूरी दे दी है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द पावर्स ऑफ अरेस्ट, सीज, सीजर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज वैलिड. मैंने चैलेंज किया था 2019 में ये संशोधन को, क्योंकि सरकार ने उसको मनी बिल के माध्यम से पेश किया था. तो राज्यसभा में हम उस पर चर्चा नहीं कर पाए. हमारी ओर से जो संशोधन हम कर सकते थे हमने नहीं किया. उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है परसों दिन कि ये बहुत गंभीर मसला है. क्या ये कानून जो बना है मनी बिल के रास्ते से बनना चाहिए था? ये हम इस पर आज कुछ नहीं कहेंगे, पर एक 7 न्यायाधीशों वाली बेंच को हम रेफर करेंगे. तो सिर्फ आर्टिकल 110 राज्यसभा को अलग करता है लोकसभा से. तो ये दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट जो है, राज्यसभा में अगर आप देखें, राज्यसभा में प्रावधान है आर्टिकल 84. थोड़ा आर्टिकल 84 देखिए. क्वालिफिकेशन है और उसके संदर्भ में यह भी प्रावधान किया गया है आर्टिकल 80 में. हालांकि आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन से डील करता है. अगर आर्टिकल 80 देखें, आर्टिकल 80
क्लॉज 3 देखें तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रावधान है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ये पहला जो मसौदा था उसमें 15 सदस्यों का प्रस्ताव था। इस पर लंबी बहस हुई। कुछ लोगों ने कहा इसको कम करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा इसको और बढ़ाना चाहिए। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आम सहमति बनाई कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, ऑफ विच पीटी उषा जी इज वन। नाउ फ्रॉम 1952 onwards, there have been 143 nominated members from 1952. And some of the most distinguished men and women of India have been nominated members. वैज्ञानिक हैं, फिल्म पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, और हमारे सबसे महान वैज्ञानिक पश्चिम बंगाल के सत्येंद्र नाथ बोस, बाबा साहब अम्बेडकर खुद राज्यसभा में, इंदिरा गांधी खुद राज्यसभा में जब आई थी, पहली बार राजनीति में आई थी, 1.5 साल तक राज्यसभा के सदस्य रही। अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। मनमोहन सिंह जी तो 10 साल प्रधानमंत्री थे, राज्यसभा के सदस्य थे। पहले इंद्र कुमार गुजराल भी थे। तो नॉमिनेटेड मेंबर, हालांकि मनमोहन सिंह जी, गुजराल, इंदिरा गांधी, वाजपेयी इलेक्टेड मेंबर थे, वो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं थे। नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं 143 नॉमिनेटेड मेंबर्स। और साधारणतः उम्मीद होती है नॉमिनेटेड मेंबर्स नॉमिनेटेड ही रहें। नॉमिनेटेड मेंबर्स की परिभाषा यह है कि दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट एंड दे विल एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट व्यूज। और जब मैं पहले पार्लियामेंट में आया, एक बड़े वकील मेंबर थे, नॉमिनेटेड मेंबर फाली नारिमन, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पूरी धुलाई की, भारतीय जनता पार्टी की पूरी धुलाई की, वामपंथियों की तो पूरी धुलाई की, किसी पार्टी को नहीं छोड़ा। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है हमारे हाउस में, जो लोग पार्टी के ऊपर उठकर हमें हकीकत दिखाएं। पर अफसोस की बात है, मैंने चेयरमैन साहब से भी कहा है, अफसोस की बात है, आउट ऑफ 143 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स, हमने एक दरवाजा खोल दिया है कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टी के सदस्य भी हो बन जा सकते हैं। तो इन 143 मेंबर्स से अब तक 28 मेंबर हैं जो या कांग्रेस के सदस्य बने हैं या बीजेपी के सदस्य बने हैं। हमारी राजनीतिक इतिहास यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी और पार्टियों को रास्ता दिखाया है, अच्छा करने का और उतना अच्छा नहीं करने का भी। तो 1970 से लेकर 16 लोग कांग्रेस पार्टी में भर्ती हुए और पिछले 10 साल में 12 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मेरा हमेशा यह मानना है कि राज्यसभा की विशेषता नॉमिनेटेड मेंबर से आती है। हमारी शान नॉमिनेटेड मेंबर से आता है। अगर वैज्ञानिक, वकील को भी, समाज के अलग अलग वर्ग, उषा जी जैसे व्यक्ति आए, बोले, पार्टी से हटकर बोले, अपनी मन की बात बोले, जनता की बात बोले, राज्यसभा को और मैं समझता हूं शान मिलेगा और सदस्यों को भी फायदा होगा। तो मैंने चेयरमैन साहब को बार बार कहा है कि ये प्रावधान हमें हटा देना चाहिए। जब एक बार सरकार नॉमिनेट करती है 12 सदस्यों को, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। उनको पार्टी में शामिल होने का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, पर खुल गया है। पर नॉमिनेटेड मेंबर्स के रूट से कई लोग आते हैं जो लोकसभा नहीं लड़ सकते हैं और पार्टी भी उनको चुनने में स्थिति में नहीं है राज्यसभा के रूट में से। तो ये तीसरा पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं। अंतिम में जो कहना चाहूंगा कि जो कानून, जो बिल आते हैं,
मैंने पहले ही कहा, राज्यसभा का महत्व है इसलिए आता है क्योंकि जब बिल राज्यसभा में पेश होता है, दैट बिल नेवर डाइज, इट कंटिन्यूस, इट कैन कंटिन्यू फॉर द विमेन्स रिजर्वेशन बिल हैज कंटिन्यूड नाउ फॉर 12 years almost 2010 it was passed. No, once it goes to the Lok Sabha, it has to lapse because the Lok Sabha has lapsed. But if it is not been referred to the Rajya, yeah, once it is goes to the, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो लोकसभा चली जाती है वहाँ लैप्स हो जाता है, पर अगर राज्यसभा ने पास किया है और राज्यसभा में है, रेफर नहीं हुआ है, तो वो जीवित है. पर राज्यसभा का महत्व जब आता है, जब बिल आते हैं लोकसभा में पारित होकर आते हैं, उस पर जो बहस होती है राज्यसभा में, उन बिल में जो परिवर्तन आता है, मैं समझता हूं वो उस बिल को और बेहतर बनाता है. मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा. 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार पंचायत और नगर पालिका के लिए अमेंडमेंट बिल पेश किया, 64th अमेंडमेंट एंड 65th अमेंडमेंट. उस पर लंबी बहस हुई. कांग्रेस पार्टी को बहुमत था, भारी बहुमत था, 404 405 सदस्य थे लोकसभा में. एक दिन में लोकसभा में पास हो गया. राज्यसभा में आया, राज्यसभा में बहस हुई और राज्यसभा में वो बिल पारित नहीं हो पाया. पंचायत बिल, 64th अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में पारित हुआ था, वो राज्यसभा में नहीं पारित हुआ. और मैं आपको कहूं, उसके बाद 1983 में, 1993 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जब आया, वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट राज्यसभा में जो बहस हुआ था 64th एंड 65th अमेंडमेंट पर, उसी के आधार पर बना. तो ये एक मिसाल है, बहुत महत्वपूर्ण मिसाल है, जहां राज्यसभा में बिल नहीं पास होने के कारण और समय मिला सरकार को, बहस जो हुई उसके सिफारिशों को लेकर नए बिल पेश किया और 73rd और 74th अमेंडमेंट बना. मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, आपको याद होगा कि नहीं, 1970 में महाराजाओं के जो प्रिवी पर्स था, उसको एबॉलिशन के लिए एक बिल पेश किया गया लोकसभा में. लोकसभा में तो पारित हो गया, राज्यसभा में आया 6 सितंबर या 5 सितंबर 1970. आपको याद है, ये बिल राज्यसभा में नहीं पास हो पाया क्योंकि 2/3 बहुमत सरकार को नहीं मिला, क्योंकि एक सदस्य नहीं मौजूद थे. और वो सदस्य, लेट मी से दिस इन इंग्लिश क्योंकि बिकॉज दिस मेंबर वाज फ्रॉम तमिलनाडु, मिस्टर S.S. Rajendran was a very famous film actor from DMK, and he was suffering from a stomach upset, and he came late for the voting to the bill in the Rajya Sabha. He could not enter the Rajya Sabha because it was closed. The quorum bill had been rung, process had started, and the abolition of privy purses and princely privileges bill did not get 2/3 majority in Rajya Sabha by one vote. I think 145 voted for it and 76 or 77 voted against. 2/3 of those present and attending, the government fell short by one. Princely bill lapsed. Elections were announced, and then you know what happened. Midterm elections were announced in 1971. चुनाव आए और हमारा इतिहास ही बदल गया. तो राज्यसभा में ऐसे भी मौके आए हैं जहां बिल पारित हुआ है और सरकार ने उस सिफारिशों को मानकर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन लाया है और बेहतर संशोधन लाए हैं. राज्यसभा में ऐसे भी मिसाल हैं जहां बिल नहीं पारित होने के कारण चुनाव की घोषणा की गई है. और हमारे हाउस में ऐसे भी हैं जहां प्राइवेट मेंबर्स बिल, हालांकि 4 या 5 ही हैं राज्यसभा में,
पर मैं आपको ये मिसाल जरूर देना चाहता हूं कि हम लोग सोचते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल इज वेस्ट ऑफ टाइम। कोई सांसद रहता नहीं है, फ्राइडे को 2 बजे चले जाते हैं, 2:30 बजे के बाद मुश्किल से आपको 10 या 15 लोग दिखाई देंगे राज्यसभा में और या लोकसभा में। There was a nominated member of the Rajya Sabha called Rukmini Devi. She was a great Bharatnatyam dancer. She started Kalakshetra in Chennai. Rukmini Devi, her full name was Rukmini Devi Arundel, but she's known as Rukmini Devi. Rukmini Devi was a nominated member of the Rajya Sabha from 1952 to 1960. And she made a speech on the prevention of cruelty to animals in 1953. Prime Minister was present when she made that speech. Prime Minister assured Rukmini Devi that government will come with a law. And in 1960, Parliament passed the Prevention of Cruelty to Animals Act. That was a direct result of a private member's bill on which the government set up an expert committee. And based on the recommendations of the expert committee, a law was passed. मेरा कहने का मतलब है, फ्राइडे को इतना लाइटली मत लीजिए। फ्राइडे दोपहर को आप इतिहास भी बना सकते हैं। सुबह और शाम फ्राइडे के अलावा सरकार इतिहास बनाती है या विपक्ष इतिहास बनाती है, पर फ्राइडे शाम को 2:30 से लेकर 5 बजे को एक इंडिविजुअल मेंबर इतिहास बना सकता है। और हमारे ही हाउस में 2015 तिरुचि शिवाजी ने ट्रांसजेंडर अधिकार पर एक बिल लाया था। सरकार उसे मानी, हालांकि अभी तक वो कानून नहीं बना है, पर वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्राइवेट मेंबर्स बिल पर लंबी चर्चा हुई और सरकार ने नहीं कहा आप बिल विड्रॉ कीजिए। सरकार ने कहा हम मंजूर है, हमें, हम इस पर कानून लाएंगे। हालांकि अभी तक लंबित है, पर वो अलग सा विषय है। सो आई वांट टू एंड बाय सेइंग दैट द राज्यसभा is one of the two pillars of our parliament, and it's an equal pillar except for the money bill pillar. It has provisions for nominated members who are meant to reflect different viewpoints of society, and most importantly, Rajya Sabha is used by political parties to bring people who will normally not be elected in the Lok Sabha, who will not be elected in Lok Sabha and who represent different sections of our society. So this argument that many people write, why do we need second house? Why can't we do only with Lok Sabha? क्योंकि हमारे कई राज्यों में काउंसिल नहीं है, बट कर्नाटक में काउंसिल है, महाराष्ट्र में काउंसिल है, उत्तर प्रदेश में काउंसिल है, बिहार में काउंसिल है, कई जगहों में काउंसिल है। कई जगहों में काउंसिल था पर उसको हटाया गया। आंध्रा में काउंसिल था पर हटाया गया। पर और अभी कुछ, मैं आपको एक मजेदार, एनीबडी फ्रॉम उड़ीसा? या यू आर, माय फ्रेंड इज हियर, मिस्टर लोकनाथ मिश्रा. When he spoke in the Constituent Assembly on the 3rd of January 1949, said, "Sir, we don't need Rajya Sabha." And I am very happy that my state, that time it was not called state, it was called province. My state, my province has abolished Legislative Council. So they abolished the Legislative Council. But I am very glad that your government has now come out with a proposal to revive that Legislative Council. So it is, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या राज्यसभा हो, इनका फंक्शन है समाज के अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देना, जो लोकसभा या विधानसभा में नहीं हो पाता है. So this is what I really wanted to say, and I would be glad to answer any questions you have. Thank you. एक चीज और मैं, सॉरी, आई वांट टू से वन मोर थिंग. राज्यसभा की एक विशेषता मैं भूल गया बोलने का, बहुत अहम विशेषता है. अमेरिका में अगर आप देखें, अमेरिका में भी 2 चेंबर हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट. और
ऐसा माना जाता है कि सेनेट हमारे राज्यसभा के मुताबिक है, पर एक बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सेनेट में अमेरिका के 50 राज्यों को 2 सदस्य चुने जाते हैं। एक राज्य का पॉपुलेशन है 10 लाख, एक राज्य का पॉपुलेशन है 10 करोड़ नहीं, 5 करोड़ और 6 करोड़, उनको 2 सदस्य हैं। यानी कि अमेरिका में हर राज्य को समान बराबर प्रतिनिधित्व है, 2-2 सेनेटर चुने जाते हैं। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स आप जानते हैं, वो तो वहाँ चुनाव तो नहीं होता है, वो तो नॉमिनेटेड है, या आप अगर 100 साल 200 साल 400 साल का इतिहास है, आपको वंशवाद से मिलता है। भारत में मेरे जानकारी में जर्मनी के अलावा और ऐसा कोई देश नहीं है जहां आबादी के अनुसार ये सेकेंड चेंबर चुना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में नागालैंड को 1 सदस्य है, गोवा को 1 सदस्य है। तो आप आबादी के पॉपुलेशन बेस्ड representation in Rajya Sabha is a great innovation made by Ambedkar, K.M. Munshi, Nehru and all those members who were of the Union Constitution Committee. उन्होंने इस पर भी विचारा, और केटी शाह का विचार था that every state must have equal representation in राज्य सभा, पर उस पर बहस हुई, संशोधन नहीं माना गया और आबादी के अनुसार ही राज्यसभा में सदस्यता होती है। अभी हमारे देश के सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 2026 में क्या होगा, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों में यह आशंका है, क्योंकि पॉपुलेशन वहां घट रहा है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, these are states where population will start beginning to decline, whereas UP, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, Rajasthan, population is increasing. So constitution was amended, and you should all, as new members, you must see this article. This was the constitutional amendment bill when Mr. Vajpayee was the Prime Minister. This is Article 81. और इसमें वाजपेयी जी के सामने कई लोग गए और कहे कि वाजपेयी जी, अगर आप जनगणना के आधार पर जाओगे तो उत्तर भारत के राज्यों के सदस्य ज़्यादा होंगे और दक्षिण भारत के सदस्य की कमी होगी। तब वाजपेयी जी की सरकार ने यह संशोधन लाया था, और यह संशोधन कहता है कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। यानी कि आज जो सदस्यता है राज्यसभा की संख्या और लोकसभा की संख्या 2026 तक यही रहा है, और 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी 2031 में, उसके आधार पर जो पॉपुलेशन आएगा उसके आधार पर एमपीओ की संख्या में बदलाव लाया जाएगा। पर ये मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग के मामले में पहले ही कदम उठाए थे। तो केरला, तमिलनाडु, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और उत्तर भारत के कुछ राज्य ऐसे, हिमाचल जैसे राज्य हैं। पर मध्य भारत और यूपी, बिहार, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां जनगणना में और आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी अगले 10-15 साल में। वहां पॉपुलेशन घटेगी नहीं, पॉपुलेशन स्थगित भी नहीं रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। तो उसको हम कैसे लोकसभा और राज्यसभा में उसको हम कैसे दर्शाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक राजनीतिक चुनौती है। Good afternoon. This is Sanjeev Arora from Punjab. My first question is regarding, you said there are bills which are passed by Rajya Sabha forever,
and which are passed in Lok Sabha, they go away with the government. Other than money bills, can you be specific about any other bills? Are there such bills which are not passed by both the houses? Give you the example. Let's take one example, the Aadhaar bill. In 2016, the Aadhaar bill was passed in Lok Sabha. It came into Rajya Sabha. I proposed 5 amendments. Rajya Sabha approved those 5 amendments. The bill went back to Lok Sabha. Lok Sabha didn't approve amendments passed by Rajya Sabha. So, President gave the assent to the bill as passed by the Lok Sabha. चर्चा हुई पर अमेंडमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा उनको. मनी बिल ऐसा नहीं है कि हम चर्चा नहीं कर सकते. चर्चा हो सकता है, चर्चा होती है, पर हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते. वही है मनी बिल में, मनी बिल की परिभाषा के आधार पर. आर देयर, आपका सवाल है, आर देयर एनी बिल्स दैट हैव बीन पास्ड इन राज्यसभा and gone to Lok Sabha and lapsed? Is that your example? No. Is that your question? No. My question is, you said that Rajya Sabha is continuous. Yes, yes. And if the bills are not passed by Rajya Sabha, they lapse with the government. If only they are passed by Lok Sabha. So my question is, what are those bills, or did I understand wrong? No, you see, I'll tell you. Since I was in government, my first instinct was to introduce a bill in the Rajya Sabha. Because I knew if I introduced it in the Rajya Sabha first, irrespective of what happens in Lok Sabha, it will continue. Yeah. It will continue. It is there. Once it is introduced, it is there. Now, what Panditji said is right. A bill is introduced in the Rajya Sabha, it is passed in the Rajya Sabha, it is referred to the Lok Sabha dissolves, then it lapses. Oh, I see. That is, I think, what you are saying. Okay, my next question is, you just said that still there is a discussion going on that do we need Rajya Sabha or not? At what level these discussions are going on and how serious is this? अरोरा जी, मेरे ही पार्टी के एक सदस्य, आप ही के राज्य के मनीष तिवारी जी ने पिछले हफ्ते अखबार में आर्टिकल लिखा था कि राज्यसभा की क्या जरूरत है. एक लंबा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है. बहुत लोग, ये तो बहुत चर्चा होती है. और जब सरकार को, आज सरकार को बहुमत है दोनों सदनों में, पर ऐसा रहा है कांग्रेस पार्टी को, एक जमाना था जब राज्यसभा में उनको बहुमत नहीं था. इस सरकार को भी बहुमत नहीं था. जब सरकारों को राज्यसभा में बहुत बहुमत नहीं होता है, तब उनके मन में ये भावना पैदा होती है राज्यसभा से हटाओ, लोकसभा में बिल हुआ है, राज्यसभा की क्या जरूरत है. पर कितना सीरियस है मैं नहीं कह सकता हूं. पर अगर आप इस सरकार को देखें, सबसे बड़े बड़े मंत्री, वित्त मंत्री राज्यसभा के हैं, उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यसभा के हैं, हेल्थ मंत्री राज्यसभा के हैं, एजुकेशन मंत्री राज्यसभा के हैं. तो उनका क्या होगा अगर राज्यसभा चले जाए तो. I'm sorry, I am asking a couple of more questions. Yes, because maybe it will answer other people's questions also. You said that before Rajya Sabha was formed, there were 60 members of the council, whichever was existent. And did Rajya Sabha also start with 60 or straight away 250? Straight away. वो 60s अंग्रेजों के जमानों में था. अच्छा. That is all. Council of State was entirely different. See, Council of State, आपको you had to pay income tax of more than 10,000 rupees. You had to pay land tax of 750 rupees annually, and you had to be member of a senate of a university. ऐसे कंडीशन थे. तो उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट था वो. Okay. Now, regarding private member bill, in the history of, I know it's statistics, but still you are more aware and everybody sitting here. In private member bill, till now, how many bills have been really taken up seriously and they have become... There have been, to the best of my knowledge, 14 private members bills which have become law. Out of which 9 are in Lok Sabha and 5 are in Rajya Sabha. Okay. 9 are in Lok Sabha, 5 are in Rajya Sabha. In the last 70 years, from 1952 onwards, 14 private members bills have become law.
पर अरोरा जी, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल सिर्फ लॉ के नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल में जब डिस्कशन होता है वो बड़ा महत्व होता है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. आप अभी अभी आए हैं, पिछले सेशन में पॉपुलेशन कंट्रोल पर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आया. राकेश सिन्हा जी का बिल था, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए. मैं बोलता नहीं हूँ कभी प्राइवेट मेंबर्स बिल में, पर उस दिन मैंने करीब 20-25 मिनट के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल पर मैंने भाषण की. जब मंत्री उठे जवाब देने के लिए, उन्होंने मेरा समर्थन किया. वो प्राइवेट मेंबर्स बिल में जो था, उन्होंने कहा यह जरूरी नहीं है, जो ये कह रहे हैं सही है. तो ये कभी नहीं होता है, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर्स बिल था और ये थोड़ा नॉन पॉलिटिकल होता है. At least you make a point. Yeah, you and make a people point. come to know. That is the point. See now, and the headline next day, Arora ji, was Minister feels no need for population control bill. That was the headline the next day in the newspaper. So it very often हम लोग सोचते हैं यार हमारा बिल का क्या सिर्फ होगा, हम लोग बहस होगी, सरकार कहेगा प्लीज विड्रॉ द बिल. ऐसा मत देखिएगा. वो बहस इज वेरी, द डिस्कशन इज वेरी The इंपॉर्टेंट. argument is, same way, since I have, this is my first session, the only session which worked was last Friday on health from 2:30 to 5. I enjoyed that so much, and I wish that's how the parliament works. We are one of the culprits, but still. And my last question is, you just said that the delimitation won't happen before 31. So, but there is a lot of gossips and discussion going on that there will be delimitation of Lok Sabha very soon. So, it's all, it's not possible, that's what you say. Government can come and amend this constitution. But according to the current constitution, according to Article 81(3), this is the constitutional 84th amendment, which was notified in 2002. It says delimitation for the first census taken after the year 2026. That is what it says. Now it is possible for this government, उनके पास तो बहुमत है. They have majority in Lok Sabha, they have majority in Rajya Sabha. But remember, they have to go back to states. Kerala will object, Tamil Nadu will object, Andhra will object, Karnataka, even though it's a BJP government, will object. Your government will object because Punjab is affected by this. All the states that were successful in family planning will object. So, has states say in that? Yes. All South Indian chief ministers have said this publicly. मैं नहीं जानता हूँ कि पंजाब से आया है, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि पंजाब के लिए बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि आपका भी नंबर घटेगा. Thank you. Thank you. सर मेरे 2-3 सवाल हैं. 0 आवर, स्पेशल मेंशन, प्रिविलेज मोशन, पब्लिक मेंबर बिल, इस पे थोड़ा सा हमें बता दें ताकि हम क्लियर हो सके. अलग सेशन है इमरान. Okay. अलग-अलग सेशन है. Okay, thank you, sir. Sir, I have one doubt, sir. Sir, nowadays lot of doping issues are going on in our country, and we are in the number 3 in the world. So Thursday, actually, Lok Sabha has already passed the bill for the doping issues. So my doubt is whether it comes to Rajya Sabha or straight away to go on to government and let's ho jayega. Just my doubt is that. No, is that local issues get highlighted prominently in Lok Sabha, and normally state level issues get taken up in Rajya Sabha, normally. But there are local issues that nowadays the distinction between local level issue and state level issue has gone. So an issue that agitates the Lok Sabha will also get very often taken up in the Rajya Sabha. Because there are some parties, many parties
Aam Aadmi Party is a unique party because they don't have Lok Sabha, but they have 10 in Rajya Sabha. Otherwise, नहीं आज की बात कर रहा हूँ, भविष्य में बदल सकता है, पर आज की बात में आपका लोकसभा में नहीं है, पर राज्यसभा में आपके 10 हैं. But most parties have few members in Lok Sabha, few members in Rajya Sabha. So what happens, madam, is that they coordinate their position. आप लोकसभा में उठाओ, हम राज्यसभा में उठाएंगे. Actually, that should not be the approach. The approach should be Lok Sabha should be meant for raising issues, as you say, local issues, constituency issues. Rajya Sabha should take larger issues dealing with states. But unfortunately, that is theory. In practice, it does not happen. India is actually in dope issues. We are in the world number 3. It's a shame for India, no? So that is why the Lok Sabha is passed the bill for. No, no. That bill is listed in the Rajya Sabha. 4 hours have been allocated to that bill. You're talking of the National Anti-Doping Bill, right? Yes, yeah, yes, it's yes, coming. yes. It'll come this week. Hopefully, Okay. hopefully the House will function. सर ये 6 साल का कार्यकाल करने का कोई विशेष कारण या 5 साल क्यों नहीं, मैं इसका इतिहास जानना चाहता हूँ. हाँ, उसका 1/3 वो 1/3 रिजर्वेशन 1/3 चेंज होता है ना, रिटायरमेंट होता है ना, 1/3 तो 1/3 मीनिंग 6. इस पर भी बहस हुई थी, या 3 साल होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, इस पर भी बहस हुई थी. पर लोकसभा जब 5 साल तय किया गया लोकसभा के लिए, 5 अगर राज्यसभा में होता तो ये इक्वल रिटायरमेंट नहीं होता. Sir, can I ask a little? sir. Yeah, a little gray area was left when you were explaining that, for example, delimitation bill. Lok Sabha ne clear kar diya, suppose Rajya Sabha also passed it for whatever. But then you said states will have say and state chief. So is it not final once Lok Sabha and Because Rajya Sabha ratifies it? This is a constitution Yeah. amendment bill. Ah, So because it's not a statutory bill. See, there are 2 types of bills. Yes, sir. One is a statutory bill and there's a constitutional amendment bill. Statutory bill, like National Doping Agency, the bill that Usha ji is referring to, that's a statutory bill. We are setting up a National Doping Authority by statute. However, this is a constitutional amendment bill, so it has to get 2/3 of the states also. Okay, if we don't have any more questions, I think we will wind up this session. And sir, as a token of appreciation to Mr. Jairam Ramesh, I would request Secretary General to give a small memento to him. Thank you. All right. Thank you very much, honorable members. We will now take a break for lunch. Lunch is served in the banquet hall. We will reassemble here at 2 o'clock for the next session. Thank you.